Check, check. 1 2 1 2. Hello, everybody, and welcome to my channel. If you're new, if you're not new, hi, welcome back to my channel. Welcome back to My Indian Life and Travels. But today I'm kicking off a new series here on this channel called A Traveler's Guide to ... Well, hi, if you did not know, my name is Bhairavi. I've been traveling for the past 10 years. Thanks to my job, I literally get paid to travel. Dream job much, but even before that, I'm an army kid, so I've been traveling my entire life. I've never had the same school for more than, I want to say, 2 years. My last school is where I stayed from 5th to 12th, which was mind-blowing for me. I am not used to a sedentary lifestyle. My lifestyle has always been moving, and today I'm here to start a series talking all about it, because I feel like, hey, after traveling all these years, I must have gained some tips, got some experiences under my belly, which I feel like, I know the expression says under my belt, but I feel like by sharing these experiences, it could help somebody who's starting to travel now. Because guys, trust me, if you open Instagram, there are gonna be a million reels pushing you and forcing you to just go travel. It's as if there's nothing else left in the world than to travel. But anyway, wait. Let's come back to reality first. What? A podcast? Yeah. I'm planning to make this no less than an hour, and that is really... Oh, wait, I need to start a timer. It's making me very nervous that I'll be talking non-stop for an hour and I can't cut it. It's a podcast. I don't want to cut it. Okay, so let me start the timer. You guys are here. I know some people cut their podcast, edit their podcast, but you can always tell when there was a cut, and then it's just not fun. So this is my first podcast. Please be nice to me. I can't seem to find the timer. Okay, I have to go in the... I open calculator to go in my clock and timer. Start. Alrighty, let's go. Why is it a 24-minute? No, I want a 1 hour timer. I'm sorry guys, I don't know how to do these things. But if you're new, please don't click out. In the meantime, how about you guys just... Okay, let me do 1 hour, okay? 1 hour. How about in the meantime, you guys like this video, leave a comment below if you're excited, if you've traveled, what's your travel background? Okay, we've started the timer. Have you traveled? Have you been an avid traveler? Are you trying to be a traveler? Because this podcast is for you, because trust me, I hate it the most when people talk about traveling and are like, go ahead, travel, blah, blah, blah. And I'm like, are you going to be the one providing the money or the bookings or the courage to these people? Like, basis on what are these influencers just forcing people to say, go travel. If you're going to Iceland this year, make sure to not go. Did you see that reel? I'm like, not everybody can go to Iceland. Hello. So can we just be in touch with reality? So that's what this podcast is gonna be. Another disclaimer, there seems to be never ending construction going on in the background, and I live in Singapore, so this is my eye roll to them. Anyway, I have a bunch of topics that I actually want to talk about. I wrote them on my iPad, very cute. So yeah, let's begin. Today I'm starting with a bang, guys. I'm talking about racism abroad. I did not want to just shy away. I'm like, let's just get into it, shall we? Alrighty. So I'm an Indian. If you guys are wondering how I've been traveling for all this time, I was a cabin crew. I am a cabin crew. I was a cabin crew with an Indian Airlines for 5 years, and now it's been 5 years that I'm a cabin crew with an international airline. So not only do I travel through my job, any off that I get, I make sure to bring in my family, me, my brother, and my mom. We go ahead and travel. We've traveled so many countries. My travel scrapbooks are full behind me. So there it is. So now, since I've been traveling internationally for the last 5 years, also, by the way, I have a habit of talking too fast. Please correct me in the comments. I'm going to try my best to slow down, because a podcast should not be stressful. So when you travel, okay. So every nationality has a stereotype. If you guys remember that, okay, have you ever heard your family telling you ki, by the way, this is going to be a English podcast because I only make videos in English, but I wanted to include English a bit here and there. So have your family or parents ever told you like, Europeans ये गोरे तो बदबूदार होते हैं, ये गोरों में से smell आती है? I've always heard people say like, that's why they created perfume, because इनमें से बदबू आती है, ये नहाते नहीं तो इन्हें perfume की ज़रूरत है, इसीलिए. So I've heard a lot of people say that in my life. तो हर रेस की अपनी स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना. मैंने ये चीज़ नोटिस किया गाइस कि जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना डिफरेंट रेसेस के, तो इनिशियली वी हैव
stereotypes about different communities also, even in our country. आप किसी भी इंडियन से मिलोगे वो बोलेंगे which part, they will ask you which part of India are you from, so they can guess and be like मैंने इसके बारे में जो सोचा था वो सही था, ये ऐसा दिखता है, ये यहाँ से you need, and that is just एक primal human instinct कि पुराने ज़माने में देखा जाए कि क्या मुझे इससे खतरा है, नहीं ये यहाँ से है तो मतलब इसको ऐसा खाना पसंद है, इसको ये पसंद होगा, यू नो। तो ये बुरी चीज़ से नहीं है, पर हम ह्यूमंस बुरा बना देते हैं इन स्टीरियोटाइप्स को कि ये यहाँ से है तो ये ऐसा ही होगा, अब मैं इसको इस वजह से जॉब नहीं दूंगा या इस वजह से टीज़ करूँगा, यू नो, सिंपल स्टफ लाइक दैट। तो हर कॉम की अलग स्टीरियोटाइप्स होते हैं, इंडियंस के भी हैं। मैं कैबिन क्रू की तरफ से नहीं बताऊँगी इंडियन पैसेंजर्स कस्टमर्स कैसे होते हैं, लेकिन अब दूसरों को बुरा बोलने से पहले मुझे अपने बारे में भी आप लोगों का एक पर्सपेक्टिव देना होगा। जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो ना गाइज, तो अब हमारे देश में क्या होता है ना, एक तो हमारे देश की सर्विस ऐसी, मैं बताऊंगी हमारा देश बेस्ट, आई लव इट। हमारे देश में आप दुकानदार के पास जाओगे, कुछ करोगे, काफ़ी जगह वो इतना अपनेपन से आपको सर्विस देते हैं। कोई पहले से काम कर रहा है, अगर आप उसको एक्सक्यूज़ मी बोल के बुला दोगे ना, वो आप पे भी ध्यान दे देगा, फिर वो आ भी जाएगा। तो हमारे देश में कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में से हमारे देश में बेस्ट कस्टमर सर्विस होती है। मुझे पता है लोग बोलेंगे जापान में बेस्ट कस्टमर सर्विस होती है क्योंकि दे विल गो अबव एंड बियॉन्ड, वो ज़मीन पे गिर जाएंगे आपको सॉरी बोलने के लिए, लेकिन वो उनके कल्चर में है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ना खुद को टॉर्चर करके सोसाइटी में अच्छे रहते हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है अगर कस्टमर सर्विस तुम्हें ऐसे देनी है तो मुझे नहीं चाहिए। तो हमारे देश में दिल से लोग करते हैं, तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशन वही बन जाती है। और हमारे देश में एक तो लोगों को लगता है कि पैसा अगर उन्होंने फेंका है ना कहीं तो वो राजा है वहाँ के। तो हमारे देश में लोगों को लगता है मैंने पैसा दिया है ना तो तुम मेरे लिए जो मैं मांगूंगा वो करोगे। अब फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि एक तो लोगों ने ना जॉब्स की होती है। हमारे देश में लोग पता नहीं ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं इसको, कि जब आप ऑफिसेज में काम करते हो। हमारे देश में कस्टमर सर्विस, दुकानों में काम तभी करते हैं लोग, या तो खुद का बिजनेस हो या फिर बहुत ही ज़्यादा नीड हो तो लास्ट रिजॉर्ट के तरीके से करता है जॉब। फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को तो 15-16 की उम्र से ही जॉब करनी पड़ती है क्योंकि उनके पेरेंट्स पैसे देने बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने कस्टमर सर्विस की जॉब की होती है, तो उन्हें पता होता है कि सामने वाले को क्या इरिटेटिंग लगता है। तो फॉरेन कंट्री में ना जब लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ करते हैं या किसी कैफ़े दुकान में जाते हैं, वो ना शॉपकीपर की कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं कि यार चल मैं ट्रे साफ़ कर देता हूँ, शॉपकीपर को अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको याद है जब वो वेटर या शॉपकीपर थे कैसा था उनके लिए। हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, अब हमारे देश में लोगों ने घर में काम नहीं किया हुआ, तो लोगों को इतना भी नहीं पता कि प्लेट साफ़ करके दोगे अगर तो जो सामने वाला धोएगा उसको आसान होगा। हमारे देश में लगता है पैसा दिया तो क्यों नहीं करेगा, पर आप हेल्प भी कर सकते हो। कम्युनिटी की बहुत देखरेख की जाती है इन फॉरेन कंट्रीज़ में, आई नो, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। हमारे देश में कलेक्टिविस्टिक है, सब परिवार का बड़ा देख के चलता है। तो ये बहुत बड़ी फिलॉसफी और सोसाइटी की बातें हो जाएंगी, तो वो अलग टॉपिक है। बेसिकली तो हमारे देश में ऐसे, तो हमारे देश के लोग ऐसे होते हैं। और दोस्तों हमारे बड़े, उनको कोई सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं है। सिचुएशनल अवेयरनेस एक होता है जब आपको पता है आपके आसपास क्या चल रहा है। हमारे देश के बड़े मुझे लगता है ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब बच्चों की तरह, कि कुछ उन्हें नहीं पता उनके पीछे कोई खड़ा है, आगे कोई खड़ा है, वो पूरी जगह लेके खड़े हो जाएंगे हैं, उनका सामान है वो फैला के बैठ जाएंगे। ये नहीं पता कि आपके आसपास और लोग भी हैं, उनका भी लिहाज करना होता है। लिहाज नहीं करते हमारे देश के बड़े लोग कई। पर जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने देश में करो, पर आप दूसरे के देश में हो ना, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। आप ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अब मैं यहाँ पे आ गया अब तुम मेरे हिसाब से करो। वही अंग्रेज़ों ने किया था और वो अच्छा नहीं रहा एक्चुअली, राइट। तो जब आप दूसरे देश में जाते हो आपको उनके हिसाब से करना होगा। अब आप यूएई जाओगे तो आप कंजर्वेटिवली ड्रेसअप करोगे ना, क्योंकि उनके देश में आए हो ना, उनके रूल्स फॉलो करने होंगे, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए। आप गेस्ट हो वहाँ पे ना, पर हमारे देश में गेस्ट गॉड है, अतिथि देवो भव। तो हमारे यहाँ पे तो हम गेस्ट को भी सर पे चढ़ाते हैं। तो आप, लेकिन जो भी है, समझ आ रही है मेरी बात। अब मैंने हमारे देश के लोगों को बता दिया। अब बाहर जाके ऐसे ही लोगों को बहुत स्टीरियोटाइप्स होते हैं इंडियंस के बारे में, कि एक तो हम हमेशा पूरे परिवार को लेके घूमते हैं। ये फॉरेनर्स आप देख लेना, 2 अंग्रेज़ होंगे, कपल होगा, वो किसी म्यूज़ियम में वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करेंगे जब तक म्यूज़ियम के बाहर नहीं आ गए। वहीं हम परिवार के साथ घूम के ओ ये देख ओ ये कर। और मैं गिल्टी हूँ, मैं ये करती हूँ। मेरे मम्मी भाई के साथ मैं बोली मम्मी ये देखो भास्कर, ये देखो भास्कर मेरे भाई का नाम है अगर आपको नहीं पता। तो उस वजह से बहुत शोर हो जाता है ना। अब कई लोगों को मे बी वॉल्यूम का आइडिया नहीं रहता कि अरे आसपास शांत है, सिचुएशनल अवेयरनेस के आसपास शांत है, धीरे बात करो यार। तो उस वजह से लोगों को लगता है इंडियंस ऐसे होते हैं, इंडियंस बहुत शोर मचाते हैं, इंडियंस जब देखो जगह घेर के खड़े होते हैं, इंडियंस ये नहीं करते। आई थिंक मेरा कैमरा अभी ऑफ हो रहा है, एक कट आएगा गाइस, पर ये मैं एडिट नहीं किया। ओके, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ना
बट ये कोई रीज़न, अब ये स्टीरियोटाइप होता है, पर ये कोई रीज़न नहीं है कि वो ना आपको डिस्क्रिमिनेट करें, है ना। ये कोई रीज़न नहीं है कि वो आपको डिस्क्रिमिनेट करे कि इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं तो तुम भी ऐसे हो गए, मैं तुम्हें बेकार सर्विस दूंगी। ये कोई तरीका नहीं होता, वो गलत बात होती है, ठीक है। पर अब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर आई वाज गोइंग। लेट मी जस्ट हैव अ सिप ऑफ माई टी। जी, तो खैर ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं इंडियंस के बारे में। अब्रॉड जाके आपको वहाँ के हिसाब से देखना चाहिए, आपको जानना चाहिए हाँ लोकल्स कैसे हैं, लोकल्स क्या कर रहे हैं। अब जैसे आप ब्रिटेन चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहाँ पे लोग इतनी धीरे बात करते हैं, तो आपको भी धीरे बात करनी चाहिए। बल्कि मुझे पता चला लंदन में तो एक डब्बा होता है नॉर्मल ट्रेन का, एक क्वाइट डब्बा होता है, पहला डब्बा या कुछ, वहाँ पे लोग टिकट लेते हैं ताकि सब चुप रहें। तो आप सोचो वहाँ पे फ़ोन पे बात करते हो, हाँ क्या चल रहा है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कितने बदतमीज़ है ये, है ना। और हमारे देश में मुझे लगता है अब चेंज हो रहा है, पर सॉरी थैंक यू का उतना रिवाज नहीं है। फॉरेन कंट्री में लोग चाहे अपने घर वालों से बात नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रेंजर्स को भर भर के सॉरी थैंक यू बोलेंगे। तुम अगर उनके दोस्त और उन्हें अच्छे से ट्रीट करो ठीक है, पर तुमने अगर वहाँ अपने वेटर को सॉरी थैंक यू नहीं बोला, तुम बदतमीज़ हो, दुनिया के सबसे बड़े बदतमीज़। तो डिफरेंट देश की चीज़ें होती है, इसमें कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं एक इंडियन ट्रैवल कर रही हूँ अब्रॉड, और ऑफकोर्स अब रेसिज्म बोल दो इस बात को, मैं आपको इंसिडेंट्स बताऊँगी, बट मेरे साथ भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी, जब लोग इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली हमारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना कि एक इंडियन लड़का इंडियन लड़की फ़ॉरेन गए और वाह सब पागल हो गए उनके पीछे, कितने सारे दोस्त बन गए उनके। इतना आसान नहीं होता गाइस, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स होते हैं सब। आप कहीं बाहर पढ़ने भी जाओगे, काम करने जाओगे, उन्हें लगेगा तुम इंडियन हो तो तुम तो मैथ्स में अच्छे हो गए, तुम तो पढ़ाई में ही अच्छे हो गए, तुम तो वही करते हो सिर्फ, तुम पार्टी वार्टी नहीं करते। या फिर लोगों का स्टीरियोटाइप होता है तुम बहुत ड्रिंक करते हो और स्मोक करते हो। मुझे यहाँ पे इतने सारे लोगों ने पूछा तू इंडियन है ना, तू बहुत ड्रिंक करती है, तू इंडियन है ना तो तू बहुत स्मोक करती है, और मैं बोलती हूँ नहीं, लोग मेरा मानते नहीं है बात, बट स्टीरियोटाइप राइट। तो दोनों तरीके से चलते हैं। खैर, सो are you guys ready? I'm gonna tell you about my 3 major incidents. I don't know if it's about racism, sexism, just a person being crazy, but this happened with me. So you have to be careful when you travel abroad, and I don't want कि मेरे ये इंसिडेंट सुन के आपको लगे अरे मैं तो नहीं करी ट्रैवल। ज़रूरी नहीं है आपके साथ हो, मेरे साथ हुआ, पर ज़रूरी नहीं है आपके साथ हो। और मेनली ये यूरोप में भी हुआ है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, यूरोप में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है आपके साथ हो। तो प्लीज़ इसको अपने दिमाग में मत बिठा लेना और इससे डरना मत, ये बस बताने के लिए कि ऐसा भी होता है। लेट्स सिप टी फर्स्ट। ओके, मैं कौन सा बताऊँ पहले? मैं सबसे स्कैरी वाला लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहला इटली में हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इटालियन लोग ना अपनी रेसिपीज़ को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। लाइक उनको होता है कि पिज़्ज़ा पे पाइनएप्पल नहीं डलता तो नहीं डलना चाहिए, वो बड़े उनको होता है अपने खाने पे शान। तो ऐसे ना आप अगर उन्हें कोई रेसिपी चेंज करने को बोलो ना, वो चिढ़ जाएंगे। अब मैं वेजिटेरियन हूँ, बाय द वे एक एपिसोड होने वाला है पॉडकास्ट का ट्रैवलिंग एज अ वेजिटेरियन, सो लुक आउट फॉर दैट इफ़ यू आर एज वेल। तो मैंने बोला कि मुझे कौन सा पास्ता होता है, एक पास्ता होता है जिसमें ना पोर्क डलता है, पोर्क, चीज़ और पास्ता, क्या बोलते हैं उस पास्ते को सॉस नहीं होती उसमें यार, कार्बोनारा पास्ता में ना पोर्क डलता है। तो अब वो तो ऑथेंटिकली बनाएंगे। हमारे इंडिया में तो कार्बोनारा, जो चीज़ें वेज नहीं भी होनी चाहिए हमारे देश में वो भी वेज मिलती है, तो उसका मत सोचना गाइज। तो मैं वहाँ गई, मैंने कहा मुझे ये वाला पास्ता चाहिए लेकिन पोर्क हटा दो। वो बोलती है बिना पोर्क के नहीं बनता। तो मैंने कहा तू हटा देना पोर्क। ऑफकोर्स ये इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हो रही थी। मैं कहता तू पोर्क हटा दे, कहती मैं नहीं हटा सकती वरना वो कार्बोनारा नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है तू कुछ और नाम दे दे पर वही पास्ता बना दे बिना पोर्क के। वो चिढ़ गई बुरी तरह। अभी रेसिज्म की बात नहीं है, पर मुझे उसके तौर तरीके नहीं पता थे कि भैया इनके देश में आके आप नहीं चेंज कर सकते। तो अल्टीमेटली मैंने बोला अच्छा ठीक है मुझे एग्लियो ओलियो पास्ता दे दे। एग्लियो ओलियो एक पास्ता है जिसमें बेसिकली पास्ता होता है, ऑलिव ऑयल होता है और चीज़ होता है और ये पेपर वेपर होता है बस। तो अगर आप इटली जाओ या किसी भी इटालियन रेस्टोरेंट में आपको एग्लियो ओलियो पास्ता और मार्गरीटा पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो आपको पता है वेज खाना मिल जाएगा इटालियन रेस्टोरेंट में। तो मैंने वो खाया। अभी रेसिज्म की बात नहीं है पर उनके तौर तरीके की बात है, ठीक है। चलो मैं दूसरों के एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस की बताती हूँ। तो बाकी दोनों एक्सपीरियंस हुए हैं अमेरिका में, जो एक अलग ही टॉपिक है अमेरिका का। वो एक अलग ही दुनिया है, मैं क्या ही बताऊँ वहाँ के बारे में। तो पहला इंसिडेंट मैं बताती हूँ सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में आता है सैन फ्रांसिस्को, और कैलिफोर्निया में वीड लीगल है। अगर आपको पता, लोगों ने बड़ा वो किया था, वाह कितने फॉरवर्ड है ये लोग, वीड लीगल की भी, अमेजिंग राइट। पर उसके जो बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मुझे देखने को मिले जब मैं वहाँ गई।
अब गाइज अगर कोई चीज़ इलीगल होती है ना तो वो थोड़ी थोड़ी करके लोग करते हैं। अब कोई चीज़, अब वीड इलीगल हो गया तो लोग उससे भी ज़्यादा आगे की चीज़ें छुप छुप के करते हैं। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना नशेड़ी होमलेस लोगों की, और ये प्रॉब्लम है, मैं खुद से नहीं बता रही, आप ऑनलाइन जाके सर्च मारोगे ना, सैन फ्रांसिस्को फेंटेनॉल एक ड्रग है, अभी ज़ॉम्बी ड्रग बोलते हैं इसको, या फिर सैन फ्रांसिस्को होमलेस प्रॉब्लम, आपको बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे, बट वो न्यूज़ अमेरिका से बाहर नहीं आती, आपको अमेरिकन न्यूज़ चैनल सर्च करने पड़ेंगे। अभी भी इंडिया में अमेरिकन ड्रीम दिखाते हैं, पर अमेरिका नहीं है वैसा। कुछ कुछ पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली, बट एक ये साइड भी है ना। जैसे इंडिया की सिर्फ गरीबी दिखाते हैं, पर इंडिया की दूसरी साइड भी है। एनीवे, इसीलिए मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, बाय द वे। सो गाइज, मैं थी सैन फ्रांसिस्को में। अब मैं कैसे बताऊँ ये बात, क्योंकि थोड़ी अश्लील बात है। तो ना हमारा होटल थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, टूरिस्ट एरिया में है, ठीक है। तो मैं और दो लड़कियां थे, तो हम लोग ना, बिल्कुल होटल है, ऐसा चौराहा सा है, उधर मॉल है, तो हम वहाँ जा रहे थे। पर मॉल के बाहर ना बहुत सारे होमलेस लोग थे। अब कहने को, अब हमारे देश में जो गरीब लोग होते हैं या होमलेस लोग होते हैं, वो बेचारे रोड पे पड़े रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो भीख मांग लेंगे, या फिर मतलब बच्चे जो होते हैं आके आपको तंग कर लेंगे रोज़ बेचने के लिए या जो भी ना, पर वो उतना पीछे नहीं पड़ते जितना ये आपके ऊपर आके पड़ते हैं, ठीक है। ये मतलब ना इनके दिमाग इतना ऑल्टर हो चुका है ड्रग्स से, और ऑफ कोर्स होमलेसनेस बहुत बुरी बात है गाइस, इतनी ठंड में बाहर हो, बहुत बुरा लगता है मुझे, लेकिन फिर भी तो वो ना आके आप पे अटैक करने लगेंगे। अगर आपने उन्हें देख भी लिया ना, वो आके आप पे अटैक करने लग जाएंगे। और ऑफ कोर्स हमारे सामने, मेरे सामने, वो अमेरिकन तो इतने बड़े बड़े दिखते हैं, वो टीनेजर्स भी बड़े बड़े दिखते हैं, तो और डर लगता है ना। और वो गाली देने लगते हैं आके। अब मैं ऐसे ओपनली गाली थोड़ी देती हूँ, तो इट जस्ट एड्स टू द होल इफेक्ट। एनीवे, सो आई वाज गोइंग टू द मॉल, देयर वर अ लॉट ऑफ होमलेस पीपल आउटसाइड, एंड एवरीवन नोज अमेरिका में गन प्रॉब्लम है, राइट। तो उस बंदे ने ना कुछ किया विच साउंडेड लाइक कैसे बताऊँ मैं, इट साउंडेड लाइक अ गन का जो पीछे का नहीं होता, इट साउंडेड लाइक दैट, बट अपेरेंटली इट वाज फिंगर्स। तो आई डोंट नो, उसने अपनी नाक पोंछी या कुछ तो किया, या वो टॉय गन थी, कुछ उसने फ्लिक कुछ किया। मेरे बगल में जो लड़की थी वो भागी आ गई, मैं फ्रीज हो गई गाइज। आई थॉट ऐसी सिचुएशन में मैं बहुत क्लेवर होंगी, मैं फ्रीज हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, मैं आ गई कि मैंने कहा थैंक गॉड तू जिंदा है। वो क्या था? उस लड़की ने बोला मुझे नहीं पता ये क्या था, पर उसने हम पे कुछ फेंकने की कोशिश की या कुछ किया, और ये अनप्रोवोक्ड था। हम बस वहाँ से जा रहे थे और हम 3 लड़कियाँ साथ में थे, तो मुझे नहीं पता, ये बहुत अजीब सा इंसिडेंट था और मैं बहुत डर गई क्योंकि वो साउंड किया गन जैसा, और उसी वक्त ना कुछ तो गन वायलेंस हुआ था, तो मुझे बहुत डर बैठ गया था उस चीज़ का। तो तब से मैं सैन फ्रांसिस्को में बाहर जाना अवॉइड ही करती हूँ। पर मेन चीज़ LA में हुई गाइस। तो मैं LA में थी। आई नो ये सुनने में लगेगा ओहो मैं सैन फ्रांसिस्को में थी, मैं LA में थी, पर ये मेरी जॉब है तो मैं शो ऑफ नहीं कर रही, आई एम सॉरी। तो मैं LA में थी और मुझे जाना था मैलिबू। अगर माइली साइरस का गाना सुना आप लोगों ने, मैलिबू, वो ना एक सी के बगल में टाउन है, बिल्कुल LA से 1 घंटे की या आधे घंटे की ड्राइव, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल गाइज। रोड चल रही है, बगल में सी है, इट्स ब्यूटीफुल, और आपकी दूसरी साइड पे पहाड़ है और इतने ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव घर हैं। इट्स अ वाइब। मेरा कैमरा फिर से बंद हो रहा है, सॉरी, इसमें सिर्फ थोड़ी सी वो रहती है। ओके, सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली। पर ना तो दिन में हमने सुबह निकले थे, तो वी थॉट विल जस्ट टेक द बस, व्यूज़ भी देखेंगे, इट विल बी नाइस एंड इट विल बी चीपर। तो लेकिन हमें ना बीच रास्ते में बस चेंज करनी थी, तो बस चेंज करने के लिए हमें एक रोड क्रॉस करनी थी, जैसे चौराहा है ना, तो इधर नहीं है, बस इधर है। तो मैं और एक और लड़की थे, हम लोग जा रहे थे। तो गाइज अब मेरे को लगता है मैं स्टीरियोटाइप नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो सामने से एक आदमी आ रहा था जो लग रहा था होमलेस, तो मैंने कहा नहीं मैं स्टीरियोटाइप नहीं करूँगी, वो रोड ही तो क्रॉस करा यार, तो क्या हो गया। क्योंकि यूजुअली अगर आप ऐसे देखोगे मैं पलट जाती हूँ, मैं वेट करती हूँ उनके जाने का, क्योंकि लोकल्स को फ़र्क नहीं पड़ता गाइज। तो और ये एकदम मूवी जैसा सीन है। ओके, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो आ रहा है, मैंने उसको देखा एक बार, उसने भी हमें देखा गाइज। वो हमारे बगल से जब निकला ना, उसने हम पे थूका और मुझे वो थूक फील हुआ। उसने हम पे थूका और उसने बोला गेट द एफ आउट ऑफ हियर। अब मुझे नहीं पता उसने बोला कि तुम दोनों लड़कियां हो निकलो यहाँ से, या तुम दोनों इंडियंस हो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, पर हम दोनों इंडियंस थे। हमने देखा गाइज, तो वो चौराहा था ना, जो गाड़ियाँ थी वो हॉर्न बजाने लग गई उसको कि क्या किया तूने। मुझे ऐसा लगा गाड़ियों ने हमारे सपोर्ट में हॉर्न बजाने शुरू किए। हमारे आगे पीछे जो लोग चल के जा रहे थे वो हमें देख के हंसने लग गए, उन्होंने ऐसे देखा कि, तो या लाइक वो लोग शॉक्ड, लोग बहुत बार तक हमें देखे थे, क्योंकि हम ऐसे कि ओह माय
गॉड, यू यू यू, क्योंकि एक तो वो होमलेस इंसान है, मुझे नहीं पता लास्ट उसने कब ब्रश किया था, छी, और वो थूक मुझे फील हुआ, और मैंने मेकअप किया हुआ, मैं मुंह धो भी नहीं सकती। आसपास एक वाटर डिस्पेंसर था तो हमने ऐसे करके थोड़ा साफ करने की कोशिश की, बट दैट वाज डिस्गस्टिंग। तब से मैं किसी होमलेस कोई भी दिखता है मैं पलट जाती हूँ भैया, इट्स सो स्कैरी। तो आई डोंट नो, जब उसने बोला गेट द हेल आउट ऑफ हियर, उसका मतलब था कि तुम इंडियंस यहाँ से निकलो, तुम लड़कियाँ यहाँ से निकलो, पर मुझे लगता है वो इंडियंस के लिए था, क्योंकि हम दोनों इंडियंस थे, हम हिंदी में बात करके हंस रहे थे किसी बात पे। तो तो जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में होते हो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं न्यूयॉर्क में बहुत गई हूँ। न्यूयॉर्क ऐसी जगह है, बहुत अमेजिंग जगह है, क्योंकि आप मूवीज़ देखते हो, अमेजिंग, बट वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, स्पेशली उनके मेट्रो में, उनके सबवे में। तो मैं सबवे में ध्यान रखती हूँ, अपनी लैंग्वेज में मैं बात बिल्कुल नहीं करती, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा वो बहुत बार बोलता है ये अमेरिका है, यहाँ इंग्लिश में बात करो, और उनको अच्छा नहीं लगता, बाहर से लोग आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, हाँ वो ट्रैवल रील्स बड़ी अच्छे से लगती है बनाते हुए, पर आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि आपको दूसरे देश के लॉज नहीं पता, आपको नहीं पता क्या यहाँ पे अभी भी गन वायलेंस हुआ था, क्या यहाँ पे अभी भी कोई रेसिज्म से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है। स्पेशली जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, इससे आपको अगर कुछ सीखना है, प्लीज़ वहाँ जाने से पहले वहाँ की रीसेंट न्यूज़ सर्च मारो, क्या यहाँ पे अभी कोई प्रोटेस्ट हुए थे, क्या यहाँ पे अभी कुछ हुआ था, क्योंकि उस वक्त चीज़ें सेंसिटिव रहती हैं। बहुत बार चीज़ें उस देश से बाहर भी नहीं निकलती हैं, पर आपको सर्च करना पड़ेगा इस देश में अभी क्या हुआ था। मैं जब फ्लाई करना स्टार्ट किया था मैं हमेशा ये करती थी, पर फिर न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गई और मैं टेंशन में जीने लग गई थी, तो मैंने कम कर दिया, पर अभी भी मैं देखती रहती हूँ हर देश में क्या हो रहा है। और फिर अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहो, यहाँ सिचुएशनल अवेयरनेस आती है, आपको पता होनी चाहिए आपके आगे पीछे क्या चल रहा है। अगर आप वीडियो भी ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपके आसपास कोई फ़ोन तो नहीं छीन लेगा, क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है। इस बारे में और पॉडकास्ट आएगा अबाउट ट्रैवल थेफ्ट। बट आज का यही था एपिसोड गाइज, रेसिज्म अब्रॉड, इट इज़ वेरी मच अलाइव। आई नो दुनिया अब बदल चुकी है, हम वो खो चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं हैं। मुझे लगा था LA के लोग तो बहुत फॉरवर्ड होते हैं, पर सब नहीं होते। ये इंसान मे बी ड्रग्स पे था, होमलेस था, इसको बस फाइट करनी थी, क्योंकि थूकने के बाद भी वो हमें ना ऐसे देख रहा था डर के कि आ तो नहीं रही, बट मैं चांस नहीं ले सकती थी, क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ वहाँ पे, वो लोकल है, उसको पता है कि वो क्या यूज़ कर सकता है फाइट के लिए, और वहाँ पे तो लोग लड़ भी लेते हैं। तो आपको बहुत अवेयर होना पड़ता है अपनी सराउंडिंग का, आपको ध्यान होना पड़ता है, आप ज़्यादा स्टैंड आउट मत करो, स्पेशली एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर। मैं एक और एपिसोड बनाने वाली हूँ अबाउट सोलो फीमेल ट्रैवलिंग, माई टिप्स एंड माई इंसिडेंट्स। अगेन आई नो इंस्टाग्राम पे देख के लगता है मैं तो ये ड्रेस पहन के जाऊँगी, मैं तो वो करके जाऊँगी, बट आपको देखना पड़ेगा, आप ज़्यादा स्टैंड आउट करोगे तो यू आर गिविंग अ रीज़न फॉर पीपल टू स्टील फ्रॉम यू। आप ज़्यादा हाई फाई लग रहे हो, वो बोलेंगे इसके पास कुछ होगा, या ये ऐसी सी लग रही है, इससे चुराते हैं। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ये रियलिटीज़ हैं ट्रैवल्स के। बट मैं आप लोगों को सैड नहीं करना चाहती, आगे बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे जहाँ मैं अच्छी बातें भी शेयर करूँगी ट्रैवल की, ताकि आप एक्साइटेड हो। बट आई होप यू गाइज लाइक दिस पॉडकास्ट। व्हाट डिड यू थिंक, शुड आई कंटिन्यू दिस, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। मुझे सिंपल ट्रैवल व्लॉग्स नहीं चाहिए, आई हैव सो मच टू शेयर फ्रॉम माई लास्ट so many years of traveling, so I hope you guys want to hear this. Please make sure to like this video, comment any other video incidents, or if you've seen vlogs of when I did this and you're like, oh ये भी हुआ था इस vlog में, I didn't know, and what you would like to hear more about when it comes to travel. And I will see you in another पॉडकास्ट एपिसोड। बाय द वे, मैंने इसका एक टेस्ट रन लिया था। मैं हांगकांग गई थी लास्ट ईयर अपनी फैमिली के साथ, और गाइज वहाँ इतनी सारी मिसहैप्स हुए थे, इतनी सारी चीज़ें रॉन्ग हुई थी, तो मैं वो पॉडकास्ट इसके एंड में लगाऊंगी। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो वो एपिसोड। माय गॉड, मेरा भाई भी आया था उसमें गाइज। We lost money, we lost time. My mom fell down. मेरी मम्मी literally injured हो गई थी खून से. Like it was one hell of a trip. So make sure to watch that after this, and I will come back with another episode next week. Till then, take care. See you. Bye bye. Happy travels.